So now we'll talk about the first phase of compiler. We will talk about every phases in detail. And first phase is lexical analyzer, and which is also known as scanner. You can see which will divide the given program into meaningful strings. Okay, so basically in what are the types of token? Identify the types of token. Keyword can be operator, constant, spatial type of token, like this. Okay, now what are the function of lexical analyzer? Actually basically it performs 2-3 main functions, which are as, first of all, whatever the first of all, the dividing the given program into token, that is one. Okay, next is eliminating comment lines like this. This is an example. If this is the line, so it will not count as a token. We'll skip this line. Okay, eliminate space, white space, character, taskbar, new line. You can understand this function as in practical also. You can implement this also. Giving a space after int, after main, you like this is okay, but giving a space after main is not mandatory, because while compiler perform or do the task, it will remove those white spaces. So it will also okay if you type your program in continuous way. Okay, so it will help in giving error message by providing raw number or column number. If you know, you will understand this thing. It is the only phase of the compiler which will scan one by one. Basically ट्रांसलेटर एंड कंपाइलर का जो हम डिफरेंस पढ़ते हैं, तो ट्रांसलेटर इज दैट स्कैन द प्रोग्राम वन बाय वन, एंड कंपाइलर आपका पूरे प्रोग्राम को स्कैन करता है. बट इन द फर्स्ट फेज, दैट इज लेक्सिकल फेज, जब भी आपकी जो एरर्स कभी कभार आती है कि अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल है या मतलब कुछ आप इस तरह के जो आपके आते हैं, बिकॉज इन दिस फेज ओनली जो भी एरर्स होती हैं इस तरह की, वो ये स्कैन कर देता है. ठीक है, सो विल टेक सम एग्जाम्पल like for example this one. Okay, so this is one example, void main. How we can tokens हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं. इसमें आप एक दो चीजें और भी देखोगे. You will better you keep that in mind. For void is 1, main is 1, this is 1, this is 4 is 1. So totally in this line we have 4 tokens. Okay, next is this one. This open braces also count. अगर हम line wise बात करें तो this is 1, in this 4, then 5, then int is 1 6, I is 1 7, this equals to is 1 8, 2 is 9. Okay, then again int है, so that will be 10, I 11, j 12, 13, 14, 15, and this is also count as individually token. Now this is 17, this is 18. Now this is very interesting thing. If anything inside this will count as a single token, will not count as like 18, 19, 20, 30, 40 like this. Okay, so it is count as complete. Whatever in this will count that as total 19, then 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, then this 28, 29, and last में आपका that is last one more will be there, 29, and maybe close one, this is 30. So total we have 30 tokens. Okay, so in this way your lexical analyzer will perform. Now we'll talk some basic things. Okay, while we come to the next phase of the compiler, that is when we talk about the parser. Okay, so जब हम parser की बात करते हैं, so parser we know what is parser. मतलब the process of dividing the string from given grammar is known as derivation, which is called also as parsing. तो जब हम parsing की बात करते हैं, so in that they are having concepts. Okay, like ambiguity आपका, okay, whether a grammar is ambiguous or not, आपका elimination of recursion क्या होता है. Okay, elimination of factoring, left factoring, कौन सी सही है कौन सी नहीं, these types of things. ठीक है,
सो दीज एक्चुअली व्हाट इज द थिंग ना, जब हम पार्सर की बात करते हैं विल इंट्रोड्यूस ग्रामर एंड अगेन आई विल टेल यू द थिंग, अगर इफ यू डोंट हैव कंसेप्ट ऑफ ग्रामर इन योर माइंड तो बेटर यू जस्ट वंस रिवाइज द मीन्स computer TOC because that is required much, otherwise you will be little bit puzzled, okay, if you forget those. Because just understand one thing, कि whatever the tokens are generated, then syntax grammar, every programming language has some set of production rules of set of production which can be 100 or more than that. With the help of those set of productions it will match the given string, जो भी आपका lexical जो tokens आपके जनरेट उनको मैच करता है कि whether it is okay, whether वो जो आपका string है और जो आपके rules हैं syntax analysis में जो rules हैं जो वो with the help of past tree बनाता है वो मैच कर रहे हैं, तो will say will pass the that program, that string, that input, otherwise हम उसको कंपाइलर क्या बोलता है, एरर बोलता है. ओके, सो वो जो आपके सेट ऑफ रूल्स हैं दैट इज उनका एक ग्रामर होता है. थोड़ा सा बेसिक मैं आपको बता दूं, जैसे हम इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, एवरी लैंग्वेज क्या है, उसके कुछ रूल्स हैं. हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की बात करते हैं, तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जब हम स्पीकिंग में लाते हैं तो सबसे पहले आपके क्या होते हैं, सिंबल्स आते हैं. ठीक है, सिंबल्स अगर हम कंपाइलर की बात करें तो आर नथिंग बट आपकी जो ये इमेजेस हो गए, ठीक है, लाइक दीज थिंग्स वी कैन से सिंपल अल्फाबेट आते हैं. ठीक है, देन पूरा स्ट्रिंग आता है. तो इंग्लिश में भी ये होता है, पहले वो आपके अल्फाबेट्स होते हैं, फिर हम उनसे वर्ड्स बनाना सीखते हैं, देन हम उनसे सेंटेंस बनाना सीखते हैं, दीज थिंग्स. ओके, सो वो भी क्या है, उसके भी कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, और अगर जब हम कुछ चीज़ बोलते हैं तो हम उन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन से मैच करते हैं. तो इसी तरह से ही हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ सेट ऑफ रूल्स ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं जिससे हमें मैच करना होता है. अगर हम कंपाइलर की बात करें तो दे आर रिटन बेसिकली, जब हम आइडेंटिफायर की बात करते हैं तो आइडेंटिफायर क्या जनरेट होता है, उसी आप CFG कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर में होता है आपका बेसिकली जो आपके कंपाइलर होता है. 90% आपका कंपाइलर CFG कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर को फॉलो करता है. ओके, तो उसी के बिहाफ पे पैटर्न को फॉलो करते हुए आइडेंटिफायर जनरेट होता है, उनको मैच किया जाता है रूल से. तो दिस इज द एंटायर प्रोसेस. ओके, सो इफ यू हैव एनी डाउट तो जस्ट रिवाइज इट वंस. ओके, और otherwise you will face little bit difficulty in all these things. Okay, so see there is one productions are given that E goes to E plus C, can be star E and IT. Okay, so if I want to generate this using the past tree, how I'll generate? I can use E plus E, then after that again any of the production I can use E plus E, again I'm using, and then I'm using IT. Fine, again that can be इधर ये क्या है, राइट एसोसिएटिव है, इट कैन बी लेफ्ट एसोसिएटिव ऑल्सो, इजंट इट? सो बट अब ये क्या है कि आपका एक स्ट्रिंग, आपको एक प्रोडक्शंस दिए हुए हैं, उस प्रोडक्शन से आपके दो पास्ट ट्री जनरेट हो रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड एम्बिग्यूटी. अगर आप इनका रूल आप अगर मैं इसको कुछ वैल्यू दे दूं, फॉर एग्जांपल मैं इसको दे दूं 2 + 3 + 4. ओके, या अगर मैं इसके जगह अगर हम एक और देखते हैं यहाँ पर, अगर बेसिकली इसकी बात करें ऊपर वाले की, तो विच वन इज ट्रू, तो विच वन विल बी ट्रू, बिकॉज एडिशन है तो मे बी इसका आंसर सही आएगा. अगर यहाँ पे कोई और ऑपरेटर हम यूज करेंगे विच आई टेल यू इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, तो मे बी द रिजल्ट विल बी चेंज, रिजल्ट विल बी डेफिनेटली विल बी चेंज. ओके, बोर्ड मास का रूल हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ रखा है इफ यू नो. तो अगर यहाँ पे 2 + 3 + 4 है तो पहले ये आया, ठीक है, देन 3 + 4 देन 2 ऐड, तो इट्स जस्ट इससे. तो लेकिन अगर हम एसोसिएटिविटी की बात करें कि हम पहले किसको ऐड करेंगे, तो S प्लस हमारा लेफ्ट एसोसिएटिव होता है, तो हम पहले 2 + 3 को ऐड करेंगे, बाद में इसको ऐड करेंगे. ओके, सो विल अंडरस्टैंड वन मोर एग्जांपल विच विल क्लियर आवर डाउट मोर बेटर वे. फॉर एग्जांपल दिस इज ID + ID. अब वी हैव टू जनरेट दिस स्ट्रिंग. ओके, आई विल कंस्ट्रक्ट दिस E + C, E + star like this, and one trees like is this also. अब यहाँ पे आप इसको मैप कर सकते हो, मीन्स अगर मैं यहाँ पे वैल्यू दूं 2 + 3 * 4, तो सबसे पहले अगर मैं बोर्ड मास को भी फॉलो करूं तो पहले मल्टीप्लीकेशन आएगा, मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, शुड बी 2 + 3 * 4, तो 3 × 4 = 12 प्लस 2 इट शुड बी 14. बट अगर हम if we follow this E,
देन दिस वन एंड दिस। तो ऑब्वियसली पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर हम इसके साथ ऐड करेंगे। बट अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 + 3 करेंगे, दैट विल बी 2 + 3 is 5। देन 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से, तो द आंसर विल बी 20। तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू रिलेट यू, दैट जब हमारे दो क्या होता है जनरली, जब हमारे दो पार्स ट्री बन रहे होते हैं, कोई भी हमारा प्रोडक्शन दिया हुआ होता है, जब हम पार्सर्स की बात करते हैं और हमारे दो पार्स ट्री बन रहे होते हैं, तो पार्सर विल गेट कंफ्यूज कि विच वन आई हैव टू फॉलो। तो दैट इज और यू कैन से अ रेस्ट्रिक्शन। हम जब भी किसी ग्रामर को सॉल्व करते हैं, कोई भी सेट ऑफ प्रोडक्शन दिया होता है, तो दैट ग्रामर शुडंट बी ambiguous, and I'll tell you there is no rule that whether a grammar is ambiguous or not. It's just a hit or trial, and as well as there is no rule to there is no algorithm for giving a solution for removing the ambiguity. Okay, it is also hit and trial, or we have to, you can say, हमें अपनी ग्रामर को इम्प्रूव करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मीन्स टू एलिमिनेट द प्रॉब्लम लाइक एसोसिएटिव एंड प्रेसिडेंस, व्हाट वी कैन डू, अगर हमें एसोसिएटिव को एलिमिनेट करना है, वी कैन रिस्ट्रिक्ट द ग्रामर बाय मेकिंग इट लेफ्ट एसोसिएटिव। ओके, हम क्या कर सकते हैं, हम ग्रामर को लेफ्ट एसोसिएटिव बता दें। लेफ्ट एसोसिएटिव मतलब क्या कि वी नो दैट आपका जो प्लस होता है वो लेफ्ट एसोसिएटिव होता है, तो वी कैन इम्प्रूव आवर ग्रामर इन दैट वे दैट इट विल बी लेफ्ट एसोसिएटिव एज इट इज लेफ्ट रिकर्सिव, बिकॉज वी डिफाइन द ग्रामर लेफ्ट रिकर्सिव। अब द नेक्स्ट इज प्रेसिडेंस की बात करते हैं, अब हम इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, विल नो वन थिंग कि जो भी आपका, जब हमें प्रोडक्शन सेट ऑफ प्रोडक्शन दिया होता है, विच एवर द सिंबल एट द जो हमारा बॉटम पे होता है उसकी प्रायोरिटी हाई होती है, यानी उसको, बिकॉज वो बॉटम पे आएगा, बॉटम पे आएगा, तो हम पहले उसको सॉल्व करते हैं। तो व्हाट वी कैन डू, हम क्या कर सकते हैं, बाय लास्ट लेवल पे हम उस सिंबल को रख सकते हैं जिसकी हाईएस्ट प्रेसिडेंस हो। ओके, सो इन दिस वे वी कैन एलिमिनेट द एम्बिग्यूटी। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट फॉर द एम्बिग्यूटी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका एक कंसेप्ट आता है रिकर्शन। व्हाट इज रिकर्शन? रिकर्शन एज नेम सजेस्ट कि रिकर्शन मीन्स क्या है कि कॉलिंग इटसेल्फ, एक हमारा कोई भी फंक्शन है, कुछ भी रिकर्सिवली कॉल कर रहा है। तो इससे क्या होता है, कभी कभार जब हम टॉप डाउन की बात करते हैं, हम जब पार्सर की बात करते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पार्सर। ओके, विल डिस्कस दैट इन डिटेल ऑल्सो, बट जस्ट इन कंसेप्ट को समझने के लिए आप क्या कर सकते हो कि हम पार्सर, हमारे 2 तरह के पार्सर होते हैं, एक होता है हमारा टॉप डाउन, एक होता है हमारा बॉटम अप पार्सर। तो अभी जब रिकर्शन की बात करें, रिकर्शन की जब हम बात करते हैं, तो अगर हमारा 2 टाइप से हमारा रिकर्शन हो सकता है। वन इज लाइक दिस, A goes to A अल्फा एंड बीटा। तो व्हाट विल डू, A goes to A alpha, A goes to alpha, then like this ना, A every time A लेफ्ट रिकर्शन। अगर हम राइट की बात करें तो A अल्फा A मीन्स इफ यू, अगर हम इसको कोड बनाए तो राइट रिकर्शन क्या कर रहा है, A फंक्शन कॉल किया, कुछ अल्फा वर्क किया, देन अगेन A लाइक दिस, तो इट विल नॉट क्रिएट अ प्रॉब्लम। बट अगर हम लेफ्ट रिकर्शन की बात करें तो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, A इज देयर, देन अगेन देयर इज A, मतलब अल्फा आया नहीं, यहाँ पे अल्फा पहले आ गया, अल्फा कुछ काम कर लिया, then there is A. Okay, but whatever is what is here happening, A, then this alpha like this. तो मतलब ये क्या है, you can say B alpha star, और यहाँ क्या है अल्फा B star, यानी अल्फा कुछ काम के बाद any number of बीटा, यहाँ पर क्या है, ये कॉल हो रहा है पहले, and then you can say अल्फा स्टार। तो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग कि राइट रिकर्शन कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है, बट जो लेफ्ट रिकर्शन होता है वो कभी कभार क्या करता है, जो हमारा टॉप डाउन पार्सर पे जो वे वर्क करते हैं, तो वो इनफाइनाइट लूप में चले जाता है। ओके, इट विल गोज इनटू अ इनफाइनाइट लूप। तो देयर फॉर दिस देयर इज मेथड टू हाउ टू रिमूव द लेफ्ट रिकर्शन। So what is the method is that, for example, this is A goes to you can say, we will directly come to the example.
like e goes to e plus t or t goes to, this is the some standard एक ये आपका मैंने सेट ऑफ प्रोडक्शन लिया है. एक्सप्रेशन कैन बी एक्सप्रेशन और टर्म कैन बी टर्म इनटू फैक्टर और फैक्टर कैन बी आइडेंटिफाइड और कैन बी नल. ओके, सो व्हाट आई एम डूइंग, सी रिकर्शन क्या होता है. लेफ्ट रिकर्शन इज व्हाट, सी दिस इज लेफ्ट रिकर्शन, दिस इज लेफ्ट रिकर्शन, लेफ्ट साइड है ना. ओके, if it likes t plus e तो it should be right recursion. ओके, एंड वन थिंग मोर, मैं एक चीज आपको बता दूं, जब हम एसोसिएटिविटी की बात करते हैं, अगर भी यहाँ प्लस है, आगे हम देखेंगे, वी विल सी दिस इन आई थिंक ऑपरेटर प्रेसिडेंस में हम देखेंगे जब हम पढ़ेंगे पार्सर्स को. तो अगर हम कभी कभार क्या होता है, एसोसिएटिविटी, जो हमारी एसोसिएटिविटी होती है वो हमारे रिकर्शन से भी रिलेटेड होती है. जब हम आगे पार्सिंग टेबल बनाएंगे तो विल सी दोज थिंग्स. ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल हियर वी नो कि प्लस इज लेफ्ट एसोसिएटिव, स्टार इज आपका लेफ्ट एसोसिएटिव, बट अगर ये रिकर्शन राइट होता तो विल से इट इज राइट रिकर्शन. ओके, एसोसिएटिविटी मतलब व्हाट आई मीन टू से कि इट विल अफेक्ट द एसोसिएटिविटी आल्सो रिकर्शन. सो सी हियर, हमें अब ये चीज आपको क्लियर हो गई. अगर इस तरह का आपका कोई भी ग्रामर आता है जहां पर आपका स्टार्टेड जहां पर आपका जो स्टार्टिंग सिंबल है वो सेम है आपके राइट हैंड साइड के स्टार्टिंग सिंबल से, तो हम उसको बोलते हैं लेफ्ट रिकर्शन. और ये हमारे पार्सर्स के लिए दैट शुड बी अवॉइडेबल होना चाहिए. ओके, अब इसको अवॉइड कैसे करें. देयर इज अ वेरी सिंपल रूल, आई मीन्स फ्रॉम माई कॉलेज टाइम आई एम फॉलोइंग दैट. मैंने तभी आपके रिकर्शन हो गया, आपका लेफ्ट फैक्टरिंग हो गया, फर्स्ट फॉलो हुआ, तो ये 4 चीज़ें ऐसी थी. फ्रॉम माई कॉलेज टाइम आई ग्रैब दीज थिंग्स. ओके, सो आई विल टेल यू द सेम थिंग टू यू ऑल्सो. वॉट यू विल डू, फॉर्मूला अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो फॉर्मूला क्या है आपका, दैट इज e प्लस टी. तो आप e को क्या मानो, a मानो, और जो हमारे सेम जो रीजन से रिकर्शन आ रहा है, जैसे मैं समझा रही हूँ, अगर आप थोड़ा सा उसको वैसे ही समझिएगा, e प्लस ई, तो उसको a माना. देन जो रिकर्शन सिंबल के बाद जितना भी आपका बच रहा है उसको अल्फा मान लो, एंड इसके बाद जो है उसको हम बीटा मान लेंगे. ओके, आई रिपीट अगेन, आपका जो रिकर्शन सिंबल है जो उनको ए मान लो, उसके बाद जो भी है, इवन अगर आपके पास ई के बाद कॉमा भी है ना, तो वो भी हमारा क्या जाएगा, अल्फा में चला जाएगा, एंड इसके बाद जो जा रहा है वो बीटा. नाउ हाउ टू सॉल्व, नाउ ई गोज टू जो बीटा ई डैश. सी दिस वन, दीज आर द रूल्स. ओके, आपको वैल्यूज रखनी आ गई, इस पूरे इसमें प्रोडक्शन में वैल्यूज आपको पता चली. अब इसको फॉलो कीजिए बस. ए क्या है यहाँ पर, आपका ई है, ई गोज टू बीटा क्या है यहाँ पर, दिस इज बीटा, वो क्या है आपका टी है. ए डैश, दैट मीन्स ए क्या है, ई, तो दैट मीन्स ई डैश. नाउ दिस ई डैश विल व्हाट विल से अल्फा. ओके, अल्फा, एंड रिमेंबर दिस थिंग, हमेशा अल्फा पहले है, कभी भी ई डैश पहले नहीं रखना, देन अगेन इट विल बी अ रिकर्शन. तो अल्फा, e dash and your null. This null is also very important. Okay, so hope you will understand this recursion. एक और हम करते हैं, जैसे ये वाला भी अगर हम देखें, दिस टी वाला देखें, तो सेम चीज हम वही करेंगे इसमें. देखो सेम सिंबल कौन से है, दिस टी को हम ए ले सकते हैं, स्टार एफ को हम अल्फा ले सकते हैं, एंड एफ को हम बीटा ले सकते हैं. तो पहला रूल क्या कहता है आपका, फर्स्ट रूल कहता है ए गोज टू बी दिस वन, तो टी कैन गोज टू एफ है आपका बीटा, एंड टी डैश, वे टी डैश गोज टू दिस टी डैश स्टार एफ टी डैश एंड एप्सिलॉन. Okay, so hope this recursion you'll understand how this actually work. Okay, so one more concept is there, that is left factoring. क्या होता है आपका, सी एम्बिग्यूअस हुआ, अनएम्बिग्यूअस हुआ, ठीक है, एक चीज हमने ये बात कही. देन हम ग्रामर पे आए, हमने देखा ग्रामर है हमारा राइट रिकर्शन होता है, लेफ्ट रिकर्शन होता है. देन देयर इज वन थिंग मोर इन ग्रामर, दैट इज डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक. होप सो आप लोगों ने ये कंसेप्ट टीओसी में, एक्चुअली आई एम नॉट गिविंग डिटेल अबाउट दिस कंसेप्ट, बिकॉज ये कंसेप्ट हम थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन इन योर 2nd 4th सेमेस्टर में हम लोग अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं. पूरा सब्जेक्ट
सब्जेक्ट है जिसमें हम सारी आपकी मशीन पीडीए के बारे में, फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में, ओके, पीडीए दैट इज सीएफजी आपका जो ग्रामर को हैंडल करता है, ट्यूनिंग मशीन दैट इज आपका जो टाइप 0 ग्रामर को हैंडल करता है, देन टाइप 1 है जिसको एलडीए लोअर बाउंडेड एलबीए हैंडल करता है, देन आपका पीडीए, देन आपका फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है। सो तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट गिविंग एनी डिटेल अबाउट व्हाट इज डिटर्मिनिस्टिक, व्हाट इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक, बिकॉज दीज थिंग्स यू मस्ट नो, ओके। सो ग्रामर कैन बी डिटर्मिनिस्टिक और आपकी नॉन डिटर्मिनिस्टिक होती है, ठीक है। सो अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस वन, इफ एनीवेयर, बिकॉज ये मैं आपको ना रूल्स बता रही हूँ, दीज आर एम्बिग्यूटी हुआ, रिकर्शन हुआ आपका, या आपका ये हुआ दैट इज लेफ्ट या राइट फैक्टरिंग हुए, ये वो चीजें हैं जब हम एक्चुअली पार्सर्स पर वर्क करते हैं। पार्सर पर जब वर्क करते हैं तब हमारे पास आती हैं सेट ऑफ प्रोडक्शंस आती हैं। वो प्रोडक्शंस में अगर कहीं भी ये हमें तीनों में से कोई भी चीजें मिलती हैं तो हमारा पार्स ट्री जनरेट नहीं होगा, हमें ये चीजें एलिमिनेट करनी पड़ेंगी, ओके। एंड ये वो चीजें अगर हम आगे किसी भी पार्सर में वर्क करते हैं और हमारे किसी भी सेट ऑफ प्रोडक्शंस जो हमें ग्रामर रूल दे रखा है अगर हमारी कुछ भी आती है तो विल एलिमिनेट फर्स्ट दीज एंड देन विल डू द अदर थिंग। सो दैट्स व्हाई बिना किसी मैंने पार्सर के कंसेप्ट किया उसके बिना मैं आपको, बिकॉज दीज आर सम लॉजिक्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग द कंपाइलर एज वेल एज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। सो हमारा क्या होता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक। अब नॉन डिटर्मिनिस्टिक क्या है हमारा, फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर का, दैट इज ए कैन बी अल्फा बीटा 1, अल्फा बीटा 2, अल्फा बीटा 3। अगर मैंने प्रैक्टिकली अगर मैं इनको जनरेट करूँ एक स्ट्रिंग तो व्हाट विल बी, ए आ गया मेरा। अब मुझे अल्फा बीटा मतलब व्हाट आई एम सेइंग कि मुझे अल्फा बीटा 3 जनरेट करना है, ठीक है। सो अल्फा बीटा 3, अब इसके बाद मैं बोल रही हूँ मुझे अब अल्फा बीटा 2 चाहिए। आई कांट, व्हाट कैन आई डू इज मैं बैक ट्रैकिंग कर सकती हूँ, इज द ओनली सोल्यूशन। अगर मैं बीटा 2 दे रही हूँ, मैं बोलूँ मुझे बीटा 1 चाहिए, अगेन मुझे ए के पास दोबारा जाना पड़ेगा, आई डोंट हैव एनी ऑप्शन। सो इफ यू सी दीज टाइप ऑफ प्रोडक्शन रूल्स, ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज योर लेफ्ट फैक्टरिंग। सी लेफ्ट वाला जो आपका फैक्टर है वो रिपीट हो रहा है, यानी ये जो आपके फैक्टर हैं वो रिपीट हो रहे हैं। तो व्हाट वी कैन डू इज, हम इसको कैसे रिजॉल्व करते हैं, द सेट ऑफ रूल्स इज लाइक व्हाट विल डू, ए कैन बी अल्फा एंड ए डैश। अब ए डैश क्या डिफाइन करेगा, जितने भी अब नॉन मैचिंग जो जैसे बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 इनको डिफाइन करेगा। सो अभी हम क्या कर सकते हैं, अगर हम अब स्ट्रिंग बनाए तो एक बेसिकली कर क्या रहा है, ए गोज टू what will do alpha a dash and अब a dash can be अब whatever I need beta 1 beta 2 beta 3 I can have, that means back postpone कर रहा है decision को, actually what it actually doing, it will postpone the decision making। तो this is you can say deterministic। अब ये इसको क्या बना दिया, इसका deterministic grammar बना दिया है, okay। तो we'll take an example like ये वाला हम लेते हैं, see s goes to I e t s dash goes to a, okay। And we'll take some more example. Yes, this is a very nice example and little इसमें आप बहुत अच्छे से इसको समझ ही पाओगे। क्या है, s goes to a b, से देखो देख के ही पता चल रहा है इसमें रिकर्शन नहीं है क्योंकि s और ये सेम नहीं है, बट फैक्टरिंग है। अब फैक्टरिंग भी कैसे हो रही है, a देन a b देन ABC ABC। अब हम कैसे, अगर आपको कंसेप्ट समझ आया ना ए डैश क्या वैल्यू ऑक्यूपाई कर रहा है देन कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप इसको थोड़ा सा ट्रबल कर रहे हो समझने में, थोड़ा सा क्रैमिंग करने की कोशिश कर रहे हो, देन इट विल बी अ प्रॉब्लम। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके। जहाँ मैं अपना पेन अपना मूव कर रही हूँ, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो फर्स्टली एस क्या बोल रहा है, एस बोल रहा है कि देखो जो नॉन आपकी मैचिंग उनको आप कहीं भी लिख सकते हो, इट डजेंट मैटर, आप इसको लास्ट में लिख सकते हो पहले भी, इट डजेंट अफेक्ट योर प्रोडक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे मैच हमने EF लिख लिए। नाउ अब देखो क्या मैच कर रहा है, ए है, ए तीनों स्ट्रिंग में है, ओके, हमने लिखा ए एस डैश, क्लियर। नाउ एस डैश क्या बोल रहा है, पहली स्ट्रिंग में देखो, पहली स्ट्रिंग में सिर्फ नल बचा तो मैंने नल लिखा। अब दूसरी में देखो, दूसरी में क्या बचा, सिर्फ बी
बी के बाद अब क्या हो रहा है एस डबल डैश। क्यों हो रहा है एस डबल डैश? क्योंकि ये बी वाला यहाँ भी है और यहाँ भी है एंड देन सी आ रहा है। ओके, सो व्हाट विल डू अब नाउ एस डबल डैश, इट विल व्हाट विल डू, इसमें क्या आ गया नल स्लैश, अब नाउ सी आ गया, सी एस ट्रिपल डैश। अब सी ट्रिपल डैश के बाद क्या आएगा, ये आएगा, इसमें क्या आ गया नल और यहाँ पर क्या है डी एस, लाइक दिस। सो बेसिकली दिस इज वेरी अच्छा है, लॉजिकेबल है, थोड़ा सा आपको माइंड लगाना पड़ेगा एक्चुअली क्या हो रहा है। एक और एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल दिस एस गोज टू ए एस एस। अब इसमें देखो, पहले आप 1 by 1 भी ले सकते हो, या आप जैसे ए एस है तो आप ए एस भी ले सकते हो। यू कैन ऑल्सो डू लाइक दिस कि ए एस डैश वेयर एस रिफाइन, यहाँ पर एस बी एस और यहाँ पर ए एस पी। ओके, बट नो सी वन थिंग, पहले सब में इस यहाँ पर एस नहीं है तो सब में क्या कॉमन है, पहले ए, तो हमें ए को लेना पड़ेगा। तो एस गोज टू ए एस डैश एंड बी, जो हमारा जिसमें कुछ हमारा लेफ्ट फैक्टरिंग नहीं है वो, जैसे हमने यहाँ पे ई एफ लिया था, राइट। अब नाउ एस डैश क्या डिफाइन कर रहा है, यहाँ पर आओ, एस एस बी एस, यहाँ पर एस ए एस पी एंड बी बी। अब यहाँ क्योंकि कुछ ये बी बी क्या आ जाएगा, बी बी, अब यहाँ पर क्या कॉमन है, एस एस कॉमन आ रहा है, तो व्हाट आई एम टेकिंग एस एस डबल डैश, वेयर एस डैश डबल डैश क्या डिफाइन करेगा नेक्स्ट लाइन में, ये करेगा जो इसके बचे हुए थे, एस बी एस ए एस पी, ए एस पी। सो होप दिस concept is clear to you. Both the three concepts are very important while we are dealing with the parser production से जो डील करेंगे। ओके